नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। इंटरनेशनल मार्केट्स में एल्यूमिनियम के दाम 4 साल की ऊंचाई पर हैं। वहीं घरेलू बाजार की बात की जाए तो जीरे में संकट के बादल हैं। कैसे देखा जाएगा इन पूरे बाजारों को, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरा एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट नेत्रा देशपांडे हैं। नेत्रा, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और एल्यूमिनियम पर ही पहले शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर इस मेटल में आते हुए देखी है। जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, 8 से 10% ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाईज मिडल ईस्ट से आती हैं। और जिस तरह की चिंताएं, चाहे वो माइनिंग को लेकर है, स्मेल्टिंग को लेकर है, स्टोरेज को लेकर है, हमने एल्यूमिनियम में आते हुए देखी हैं। किस तरह से आप ओवरऑल सेक्टर यहाँ पर वॉच कर रही हैं और यहाँ से क्या सेंस है? Yes, thanks, Manisha. Actually, looking to the currently, yes, the smelter capacity and whatever the supply disturbance which is coming through this Bahrain deliveries has suspended due to the shipping delays through this Strait of Hormuz. So that would be the major concern due to this Iran and conflict, which is and escalating geopolitical issues. They are also adding like whatever 9% of as Middle East almost contributing 9% of overall global aluminium output. So there would be kind of highlighting the risk of supply disturbance, which is likely to keep the metal, especially all the base metals have increased on this Middle East, whatever the escalations. But definitely aluminium got in this front a very good support as the prices have increased very sharply as same about like highest level since 2022. So we may see there would be kind of a further supply disturbance due to this Strait of Hormuz delaying the shipments. Definitely, we can see the Bahrain suspended the deliveries, so that would be the major trigger. As we can see, there would be kind of the metal prices would remain supported in the near term basis. नेत्रा, अगर हम इस साल की शुरुआत से ही देखें तो सबका यही कहना था कि ये साल मेटल्स के लिए होगा और सभी मेटल्स में शायद तेज़ी भी देखने को मिलेगी। कॉपर की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई, एल्यूमिनियम, जिंक में भी बढ़त देखने को मिली, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स प्रॉफिट टेकिंग, बाजार एक तरफ टैरिफ्स, दूसरी तरफ चाइनीज़ डिमांड और तीसरी तरफ अब यहाँ पर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ नजर आया है। यहाँ से ओवरऑल सेंस अब इस साल के लिए एक मीडियम टर्म, स्लाइटली लॉन्गर टर्म के लिहाज से आप मेटल्स में कैसे देखेंगी? Yes, definitely this year and again in the last year also, the metals have outperformed all the sectors. If you can see, compare in the equities and again for the commodities front, including precious base metals, all have outperformed. We have also seen the LME prices have also increased. In terms of M6 also, they got the very good parity terms में because of the rising dollar. तो ये यहाँ से जो conversion में भी है काफी ज़्यादा up move अपने को M6 में we have seen that rally. So definitely near term basis पे जो prices है specifically the base metals, the also the ferrous segment and non-ferrous segment. So जैसे aluminium है, lead है, zinc है. So ये काफी ज़्यादा metal sectors outperform करने वाले हैं. We can also see there would be kind of this further continuation because China ने भी yesterday थोड़ा सा उनका growth outlook कम कर दिया था. But definitely जो short term consolidation दिख रहा था वो जो अभी metals में वापस we can see again on this whatever the supply disturbance and inventory reduction which is happening because premiums already US and Europe में काफी ज़्यादा टाइट improve हुए हैं, काफी ज़्यादा premiums बढ़ चुके हैं. LME में भी also we have seen consistent rally since last 4 days, especially all the base metal segment. Except copper, we have seen some corrections due to this China growth outlook. But other metals में काफी ज़्यादा जैसे aluminium and the other counters, specifically lead, zinc, they have shown the consistent rally. And we can also see the LME, copper, and whatever the Middle East war, which also saw the oil prices rising. So that would be also kind of a major component for the further uptick for the metals. As we have seen the industrial demand for the all the metal segment, also the revival of the solar and the re-electrification and the renewable energy that is also likely to uh, push some support to the prices because rising infrastructural demand, industrial demand that may also likely to add good positive weight for the metals this year. So I'm very much optimism by I keep and we can see the further extension of this rally as it has outperformed. But coming 2 years, and we can see again this year, there would be further uptick in this.
नेत्रा, ऐसे कोई मेटल्स हैं जहां पर आपको लगता है ज्यादा बुलिशनेस है दूसरे मेटल से? जब इस साल की शुरुआत हुई तो सबको लग रहा था कॉपर सबसे बुलिश मेटल होगा, लेकिन एज महीने यहाँ पर बीते हैं हमने एल्यूमिनियम को अच्छा खासा आता हुआ देखा है। स्टील में जहां पर बढ़त नहीं थी पिछले साल, मल्टी ईयर लोज पे था, वहां पर भी कुछ सपोर्ट है। कहाँ ज्यादा बुलिश हैं आप? किन मेटल्स पे, किन मेटल कंपनीज पे यहाँ पर ध्यान रखने की राय देंगी? Yes, definitely. As we have already seen, the ferrous segment, that is steel, have underperformed last year, but we have seen the good amount of rally in all the steel segment. The China anti-dumping safeguard duties and lot of factors which was there, like as we can see the ramp up in the industrial demand, that has also led support to the steel prices. But along with the copper, I see the aluminium that is likely to outperform. The especially the aluminium making industries like Hindalco, Nalco, all the like Vedanta, they have outperformed. Like today also we have seen NMDC and the other stocks, specifically like steel may also we can see there would be kind of a steel, aluminium. These are the certain metals which is likely to outpace. Copper is there on the electrification and the renewable, whatever the auto demand and the energy segment. We can also see the second half there would be kind of a revival and a revamp in the copper base metal in copper specifically. But yes, aluminium, steel, these are likely to outpace the along with that zinc also to some extent, because Hindustan Zinc that also got very good support on the rising silver prices. So because they are the byproduct which remain and dependent on the silver and prices. So in bullions also there would be kind of a slight consolidation, but definitely one has to keep like definitely as a diversified to the bullions in their portfolios. And the other base metal segment, yes, that is I said aluminium and to some extent lead also. And again, the other counters like specifically the steel, because on the galvanization part, we can also see there would be kind of a further demand in this. So these are the certain base metals which is likely to show their momentum, and definitely growth momentum, it's still to be there. नेत्रा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो क्लियरली इन्वेंट्रीज में गिरावट है, इंडस्ट्रियल डिमांड में रिवाइवल देखने को मिला। अगले 2 साल में यहाँ पर बुलिशनेस जारी रह सकती है। और जैसे नेत्रा हमें बता रही हैं कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, स्टील, इन सभी मेटल्स में आगे जाकर खरीदारी के मौके बनते हुए नजर आ सकते हैं। आज ऑफकोर्स थोड़ा सा वीकर डे है, एल्यूमिनियम में अच्छी खासी तेजी है, लेकिन बाकी मेटल्स हल्के से प्रेशर में। हमारे साथ गंगानगर कमोडिटीज़ के अमित खड़े हैं। अमित, नमस्कार। आप कैसे देखते हैं मेटल्स को? जिस तरह से हमने कॉपर में 1200 का लेवल टूटता हुआ देखा है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑफ कोर्स अच्छी खासी तेजी में है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिहाज से क्या करें? नमस्कार मनीषा जी और सभी दर्शकों को, और आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेटल्स की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा मोमेंटम दिखा है। एल्यूमिनियम ने सभी को जो है चौंका दिया, क्योंकि कॉपर पहले तेज चल रहा था, उसके बाद फिर जिंक चला, और अब एल्यूमिनियम में जो है सभी मेटल्स को पछाड़ दिया है। तो नो डाउट एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओवरऑल ट्रेडिंग के लिहाज से अगर हम बात करें 1 से 2 दिनों के लिहाज से, तो 330 के आसपास एक फ्रेश खरीदारी एल्यूमिनियम में की जा सकती है। 335, 337 तक के टारगेट इसमें रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 327 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हम जिंक की बात करें तो 325 रुपए के आसपास मार्च वाला जिंक में भी फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 320 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर में 339, 340 तक के इसमें टारगेट रहेंगे। कॉपर का रेंज ओवरऑल देखा जाए तो 1150 इसका एक अच्छा बेस का काम करेगा। तो 1150 बॉटम मान के चलना चाहिए ट्रेडर्स को, और ऊपर में 1400 रुपए ओवरऑल, ये 2 से 3 महीने का भी मैं बता रहा हूँ कॉपर का। तो 1150 से लेके 1400 की रेंज मेरे को नजर आती है। अब हम थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम, जैसा कि मैं चार्ट देख पा रहा हूँ, अभी 3300 के आसपास का भाव है। इसका जो लाइफ टाइम हाई देखा था वो 2022 में मार्च के महीने में लगा था 3966, 3966 के आसपास। तो मेरे को लग रहा है ये साल जो है ये 3900 के आसपास का भाव टेस्ट कर सकता है। तो एल्यूमिनियम पे ट्रेडर्स को खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग जो है चार्ट इसका नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम नंबरिंग करें तो पहले नंबर पे एल्यूमिनियम को रखेंगे, दूसरे नंबर पे जिंक को, थर्ड नंबर पे कॉपर को। इस तरीके से जो है ट्रेडर्स इसमें ट्रेड बना सकते हैं। मनीषा जी। अमित, आप प्रेशियस मेटल्स में क्या करने की राय देंगे? जिस तरह की मुनाफा वसूली सोने चांदी में देखने को मिली है, ऑफकोर्स काफी वॉलेटाइल है, दिन का $100 की मूवमेंट बड़ी आम सी बात है, लेकिन क्या करें? बिल्कुल मनीषा जी, ट्रेडर्स के लिहाज से देखा जाए तो मोमेंटम काफी अच्छा है, बट जो छोटे ट्रेडर हैं उनको अभी हाल फिलहाल के लिए थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि $100 मतलब देखा जाए अगर हम एमसीएक्स की बात करें
तो लगभग 2,000 रुपए, 2,000 रुपए मतलब बड़े गोल्ड में 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए की डेली की हार-जीत अभी बड़े गोल्ड में अभी हो रही है। तो छोटे ट्रेडर को अभी हाल-फिलहाल थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। बट जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो ट्रेड करना चाह रहे हैं, वो अप्रैल वायदा गोल्ड में 1,60,000 के आसपास एक फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 1,65,000 रुपए 1 से 2 दिनों का टारगेट रहेगा। 1,59,000 रुपए इसका स्टॉप लॉस है। चांदी की अगर हम बात करें तो मई वायदा चांदी अभी एक्टिव हो चुकी है, तो 2,61,000 के आसपास सिल्वर मई खरीदारी करनी है। 2,73,000 रुपए का टारगेट रखना है और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2,56,000 रुपए का रहेगा। मनीषा जी, बहुत शुक्रिया अमित जी साथ जुड़ने के लिए और मेटल्स पे वो राय भी देने के लिए। आज के बजिंग कमोडिटीज में यही दोनों पैक्स आते हैं और खरीदारी की राय यहाँ पर अमित जी की तरफ से बनती भी हुई। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो हमारे साथ FISS के चेयरमैन तेजस गांधी जुड़ेंगे। बात करेंगे यहाँ पर मसालों की। नमस्कार, स्वागत है आपका और हमारे साथ अब FISS से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से आप देखते हैं सबसे पहले तो जीरे के प्राइसेस को तेजस जी, क्योंकि अच्छी खासी तेजी यहाँ पर भावों में है। माना जा रहा है कि मौसम की वजह से यहाँ पर फसल को भी कुछ नुकसान है। नमस्कार मनीषा जी, आपके चैनल पर बुलाने के लिए मुझे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो अभी 2 दिन का सम्मेलन संपन्न हुआ अहमदाबाद में 28 फरवरी और 1 मार्च को, हमारा जो क्यूमिन का सर्वे आया है उसमें पिछले साल से करीब 5% की गिरावट देखी गई है। ये 5% की जो गिरावट थी वो बेसिकली मौसम के डिस्टर्बेंस की वजह से देखी गई थी और पिछले साल का जो प्रोडक्शन था 5,38,000 टन का, इस बार हमारे सर्वे में दिखाया गया है 5,13,000 टन का। कितने भाव इसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुके हैं और यहाँ से आपको क्या लगता है कितनी तेजी और देखने को मिल पाएगी? भाव के बारे में तो मैं नहीं बता सकता है बीइंग ऑन अ पोजीशन। हाँ, लेकिन यहाँ पर डिमांड अच्छी निकलनी चाहिए। अभी देखिए, अभी से यहाँ से जून तक इंडिया इज द ओनली सप्लायर इन द वर्ल्ड और डिमांड भी, अभी नया सीजन है, सब लोग नए माल की राह देख रहे थे। तो और ये पिछले 1 महीने से डिमांड भी काफी कम थी क्योंकि नया माल बाजार में आ रहा था। मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक अच्छी डिमांड निकलनी चाहिए जो प्राइसेस को सपोर्ट करने चाहिए। तेजस जी, मैं प्राइस व्यू आपसे नहीं मांगूंगी, लेकिन आप कहेंगे जो ये कम फसल है, अच्छी डिमांड है, ये सारा कुछ भावों में फैक्टर्ड इन है या आपको लगता है कि यहाँ से और तेजी देखने को मिल पाएगी? यानी आप कहेंगे एक डायरेक्शनल तेजी अभी भी कायम है प्राइसेस में? हाँ, कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से समाचार ये आ रहे हैं कि चाइना का भी कुछ डिमांड निकला है। तो अगर चाइना मार्केट में आता है तो डेफिनेटली भाव को कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल मिलता ही मिलता है। तेजस जी, आपने अभी अभी FISS का सेमिनार किया है, काफी सारे मसालों पर यहाँ पर बात हुई है। क्या कुछ वहां से भी निकल के आया? जीरे में तो तेजी सभी लोग यहाँ पर कह ही रहे हैं, लेकिन बाकी मसालों को क्या लेकर क्या सेंस बनती है? बाकी मसालों में भी आप देखिए, एक तो धनिया में भी हमारा सर्वे बोलता है कि पिछले साल से कमी है, करीब 13% का धनिया में कमी आया है प्रोडक्शन में। तो वो भी बिकॉज ऑफ ये अपना वेदर फैक्टर के हिसाब से आया है। वेदर डिस्टर्बेंस काफी आया था सोइंग के बाद, तो ईल्ड में कहीं ना कहीं, क्वालिटी में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आएगी। धनिया में कैरी ओवर स्टॉक्स भी एकदम मिनिमम लेवल्स पे हैं। तो आप जो ये रैली देख रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल्स इन धनिया। और हल्दी में आपको क्या लगता है? हल्दी पर अगर कोई बात हुई तो? हल्दी में मेरा तो कोई खास विषय नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन अच्छा बता रहे हैं, स्टॉक लेवल्स भी काफी कम है और जो लोग अभी हल्दी का काम करते हैं उनको ये लेवल पे भाव टिके हुए लगते हैं। तेजस जी, ऑफ कोर्स FISS मिस हुआ, आने को नहीं मिला वहां पर, लेकिन ओवरऑल किस तरह से आप एक्सपोर्ट नंबर्स बनता हुआ देखते हैं? जिस तरह से मिडल ईस्ट में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, माना ये भी जा रहा था कि रमजान की मांग निकलेगी, आगे शादियों की मांग भी निकलेगी, कुछ जो इस असमंजस हम बाकी कमोडिटीज में यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं, क्या मसाले भी उसे फेस कर रहे हैं? हाँ जी मनीषा जी, आप आते तो अच्छा रहता। हमेशा आप लास्ट ईयर भी आपको मिस किया था, इस बार भी आपको मिस किया, लेकिन अगली बार पक्के से। इस बार डिमांड देखिए, मिडिल ईस्ट का जो अभी टेंशन चल रहा है उसमें एक तो काफी फैक्टर्स हैं। एक तो कंटेनर फ्रेट काफी बढ़ा दिए शिपिंग कंपनीज ने। हमने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को भी लिखा है, PMO को भी लिखा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी लिखा है
कि भाई आपका जो शिपिंग कंपनीज का जो कॉस्ट है वो आप कवर कीजिए, अनड्यू एडवांटेज मत लीजिए। तो ये हमने शिपिंग प्रेसिडेंट को भी लिखा है और सारी मिनिस्ट्रीज को हमारी ये रिप्रेजेंटेशन जा रहा है। और जहाँ अगर डिमांड की बात है, डिमांड कहीं ना कहीं शिपमेंट होल्ड पर है। जो दिक्कतें आएंगी वो आएगी जो माल रास्ते में है वो शायद थोड़ा रिस्क पे है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से भी यही विनंती करते हैं और ये भी हमने हमारी रिप्रेजेंटेशन में लिखा है कि जो रिस्क इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है वो सारे वॉर और सारे रिस्क कवर करके चले। और एक फाइनल चीज तेजस जी, कितने समय तक आपको लगता है कि इंडस्ट्री इसे झेल पाएगी? क्योंकि सभी को लगता है कि हफ्ता ऑलरेडी होने आया है, शायद एक हफ्ता और, लेकिन अगर ये तीसरा और चौथा हफ्ता निकला तो सभी इंडस्ट्रीज को कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। हाँ जी, अभी तो एक गुड न्यूज आई है मेरे ख्याल से, आपने भी देखा होगा, आपके दर्शकों ने भी देखा होगा कि ईरान अभी तैयार हो गया है नेगोशिएशन के लिए। तो दैट हैज सपोर्टेड द जी तेजस जी, ईरान ने फिर से कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा और ये जो न्यूज़ चल रही है वो शायद पहले की है, वॉर के पहले की न्यूज़ है और ईरान ने मना किया है कि वो खबर सही नहीं है। अच्छा, तो फिर अगर ये वॉर लंबा चला तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कमोडिटी पे इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी कमोडिटीज हैं जो एक्सपोर्ट का करीब 20-25% बास्केट भी है। और जो रूट, ठीक है, आप रूट को तो 20-25% प्राइसेस हाई कर, कंटेनर फ्रेट हाई करके भी आप ले जा सकते हो, लेकिन जो रिस्क फैक्टर है वहां से ले जाने का वो बहुत बड़ा है। तो इसीलिए आई थिंक अभी वेट एंड वॉच सिचुएशन होनी चाहिए। जो भी कंटेनर पोर्ट पे पड़े हैं मेरे ख्याल से उसको होल्ड करना चाहिए। शिपिंग कंपनीज को और कस्टम्स को और गवर्नमेंट को भी मेरी ये विनंती है कि जो कंटेनर पोर्ट पे ऐसे स्टक हुए हैं उस पर ज़्यादा डैमेज ना लगे, बैक टू टाउन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जिसको बैक टू टाउन करना है उसमें दिक्कत नहीं आए, ये हमारी विनंती है। फेयर पॉइंट। तेजस गांधी जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली तेजी यहाँ पर मसालों में बनती हुई नजर आई है और आप भी मसाले अगर आपकी स्क्रीन पे लेके आए तो 3 से 4% की तेजी अक्रॉस बोर्ड यहाँ पर है। जीरे में जैसे उन्होंने कहा कि एक डायरेक्शनल तेजी यहाँ पर जारी रह सकती है। धनिया ऑलरेडी यहाँ पर 3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्शन 13% कम है, वो एक अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है धनिये पे। और जहाँ तक हल्दी की बात है, बढ़त की एक्सपेक्टेशंस वहाँ पर भी, तो ओवरऑल मसालों में जोरदार तेजी के साथ आज कारोबार। वही इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।